السلام علیکم، اس کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اے اللہ جو دعاؤں کی قبولیت بخشتا ہے، اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی اہلکار کو دفتر خارجہ طلب کر دیا گیا۔ پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 19 اگست کو بھارتی فائرنگ سے ایک پاکستانی شہری زخمی ہو گیا تھا۔ LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی اہلکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ پاکستان نے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ 19 اگست کو بھارتی فائرنگ سے ایک پاکستانی شہری زخمی ہو گیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں نہ کوئی کشیدگی ہے اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی معاملہ زیر غور ہے۔ OIC نے کشمیر میں بھارتی مظالم پر کئی قراردادیں منظور کی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان ایسے دو ریاستی حل کا حمایتی ہے جس میں القدس فلسطین کا دارالحکومت ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین مضبوط تعلقات ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے سعودی عرب میں سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے میں 4 نکات شامل تھے۔ کلبھوشن کیس میں مؤثر نظر ثانی، بھارتی جاسوس کو اس کے حقوق بتانا تھا۔ کلبھوشن کی سزا پر عمل کے لیے نظر ثانی فیصلے تک حکم امتناعی دیا گیا۔ کلبھوشن جادیو کو قونصلر رسائی دینا بھی اس میں شامل تھا۔ بھارت کو دوبارہ وکیل مقرر کرنے اور تیسری قونصلر رسائی کی پیشکش کی ہے۔ امید ہے بھارت پاکستانی عدالتوں سے تعاون کرے گا۔ بھارت الزام تراشی کی بجائے عدالتی فیصلے پر عمل کرنے میں تعاون کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین چلے گئے۔ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کریں گے۔ دورہ چین پر روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اہم دورے پر چین جا رہا ہوں۔ اس دورے سے متعلق میری وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ میرا وفد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ میری ملاقات دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ میں ایک مختصر 1 روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ فارن منسٹر وانگ ی کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کورونا وبا کے بعد چین کا دورہ کرنے والی پہلی سیاسی شخصیت ہیں۔ 2 روزہ سرکاری دورے میں وزیر خارجہ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے اور چین میں ہونے والے پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کریں گے۔ سندھ کابینہ نے کماڑی ضلع بنانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں کچھ وزراء نے خیرپور کو بھی 2 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ہے۔ کابینہ نے سندھ ٹرسٹ ایکٹ 2020 کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء، مشیر، چیف سیکرٹری، متعلقہ سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ ٹرسٹ ایکٹ 2020 منظور کر لیا گیا۔ سندھ ٹرسٹ ایکٹ کو FATF کے مطابق بنایا گیا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ قانون میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی کابینہ نے اجلاس میں کمیاڑی ضلع بنانے کی منظوری بھی دے دی۔ کمیاڑی ضلع میں سائٹ، بلدیہ، ہاربر اور ماڑی پور کو شامل کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ سندھ کابینہ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت غربی میں 7 سب ڈویژنز منگو پیر، سائٹ، بلدیہ، اورنگی، مومن آباد، ہاربر اور ماڑی پور شامل ہیں۔ آبادی کے حساب سے ضلع غربی پورے سندھ میں بڑا ضلع ہے۔ اجلاس میں کچھ وزراء نے خیرپور کو بھی 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کا نام دینے کی تجویز کے ساتھ شہر قائد کے اضلاع کو وہاں کے مشہور علاقوں کے نام دیے جانے کی بھی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ 28 اگست کو لوکل گورنمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ یہ سندھ حکومت کی جمہوریت پسندی ہے۔ باقی کسی صوبے میں لوکل گورنمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی۔ ہم نے میئر کراچی کو جیل سے کام کرنے دیا اور تعاون کیا۔ جمہوری پارٹی ہیں، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کابینہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لوکل باڈیز کو مدت پوری کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف 4 فون کر لیں، عمران خان مدت پوری کریں گے۔ اپوزیشن گروہ بندی کا شکار ہے، حزب اختلاف کی خواہش دل میں ہی رہے گی۔
वजीर आजम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। मैंने पहले भी कहा था ये APC जो है ईद के बाद मुहर्रम होगा और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल होगा और ये देखते रह जाएंगे। और इनकी पार्टियों के अंदर जो आपस में ग्रुपिंग है वो इनको किसी काम के लिए आवाम जो है इंशाअल्लाह ताला गो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मसाइल हैं। 2 साल में हमने पूरी कोशिश की और इनका एक ही मुतालबा है। और मैं एक बात आज श्योरिटी से कहता हूं, इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। इनको NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और इनकी ये ख्वाहिश जो है दिल में ही रहेगी और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा और इनकी ख्वाहिशें बराबर नहीं होंगी। और NRO जो है वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं मिलेगा। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें 9 सितंबर को तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म दिया गया है। नैब की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर फैसला आइंदा समात को करेंगे। अदालत ने 9 सितंबर को नामजद मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को भी अदालत तलब कर लिया है, जबकि सुप्रिंटेंडेंट मलिर जेल को आइंदा समात पर अनवर मजीद को भी पेश करने का हुक्म दिया है। तोशाखाना रेफरेंस की नकूल आसिफ जरदारी और अनवर मजीद के हवाले कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनाला और जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समात की 1 मिनट के दौरानिये की समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जो कि मंजूर कर ली गई। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो जमानत पर हैं और उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को रोका जाए। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में तेज बारिश से जल थल एक हो गया, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया और बिजली भी गायब हो चुकी है। लाहौर में तेज बारिश से जल थल एक हो गया, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हुई, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, बिजली भी गायब हो गई। शहबाज शरीफ के पैर पे आए हुए हैं, उन्होंने किया हुआ ये काम। अभी मौजूदा हुकूमत अभी इस पे यहाँ पे कोई काम नहीं किया। कोशिश करते हैं, इसे खोलते हैं, आगे इसका निकास नहीं है। ये जो पुल शुल इन्होंने सारा ये नाले बर्बाद कर दिए हैं, वो सर्कल खत्म हो गए हैं। बागों के शहर में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला ना थम सका। वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद पानी ही पानी जमा हो गए और सड़कें डूब गईं। शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 186 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई, अपर माल 141, मुगलपुरा 74, ताजपुरा में 173 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। निश्तर टाउन में 123, चौक नाखुदा में 120, पानी वाला तालाब में 141 मिलीलीटर बारिश हुई। जरा सी बारिश होती इतना सारा तलाशा बन जाता है, कहते यहाँ सुनाई नहीं होती। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी का हुक्म भी सादिर कर दिया। उनका कहना था कि बारिशी पानी के जल्द निकास में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, शहरियों को मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। लाहौर में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश होने के कई घंटे गुजरने के बावजूद भी शहर पैरस बना हुआ है। हमारे साथ जैन नकवी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर की? जी बिल्कुल, ये है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं लाहौर शहर के दरिया रावी में मौजूद हूं, तो ऐसा नहीं है। ये है लाहौर का वाल्टन रोड, जो फिरोजपुर रोड से होता हुआ कैंट की जानिब जाता है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे मानसून की बारिशों ने वासा की कारकर्दगी का
पोल मुकम्मल तौर पे खोल दिया है। 2-2 फुट पानी है सड़क पे, लंबी कितारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। न सिर्फ कितारें हैं बल्कि इसके साथ साथ शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। अगर इस वक्त देखा जाए तो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इस पानी में बंद हो रही हैं, इसके अलावा गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, न सिर्फ एक सड़क बल्कि इसकी जानिब जो दूसरी सड़क है, दोनों तरफ जो है वो यूं ही पानी खड़ा है और शहरी जो हैं वो इसी पानी में से गुजरने के लिए जो हैं वो मजबूर हैं, क्योंकि शहरी कहते हैं कि उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, अपने घरों तक पहुंचना है, जो उनके लिए ऐसा होता नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इस इलाके की तो ये लाहौर का एक पोश इलाका तस्वुर किया जाता है, जिसमें DHA भी आता है। DHA के साथ साथ जो है वो कैंट का इलाका जो है वो भी यहीं से मुल्हिका है। यहाँ पे मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ से गुजरते हैं। क्या कहेंगे, पेरिस बन गया है? ये तो पेरिस है, ये नया पाकिस्तान है ना, इसलिए ये पेरिस बना है। वो कहता है नया पाकिस्तान बना, ये नया पाकिस्तान है, इससे पुराना ही अच्छा था। शहरी जो हैं वो हुकूमत पे नाला नजर आते हैं, कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत पे जो है वो बड़े ताने दिए जाते थे और बड़ा उनको बुरा भला कहा जाता था लाहौर में जब भी पानी खड़ा होता था। तो लेकिन अब जो है अब तो तब्दीली की सरकार है और अब नया पाकिस्तान है, तो नए पाकिस्तान में भी हालात जूं के तूं हैं। शहर लाहौर में अब भी जब भी बारिश हो तो सूरत हाल कुछ यूं होती है कि शहर की आम शाहराहों पे जो है 2 से 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है और इसकी निकासी आप जो है वो भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बायस मकानात की छतें गिरने से 15 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 17 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। पंजाब में बारिश के बायस अफसोसनाक हादसा पेश है। फालिया में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, हंसता बसता खानदान लुक में अजल बन गया। मलबे तले दबकर मां और 4 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। जहां बाग बच्चों की उम्रें 2 से 8 साल के दरमियान थी। रेस्क्यू और पुलिस ने लाशों को मलबे से निकाला। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर की छत गिरने से 4 अफराद जहां बाग 11 जख्मी हो गए। रेस्क्यू और इलाका मकीन ने मलबे तले दब जाने वाले अफराद को निकाला। चकवाल के इलाका कस्बा भाल में मट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद दब गए। दम घुटने से 3 अफराद चल बसे, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को रूरल हेल्थ बोछार मुंतकिल कर दिया। शेखपुरा के इलाके में घर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने मां और बच्चे की जान ले ली। 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एक शख्स जल बसा। रेस्क्यू के मुताबिक जान भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद सरवर के नाम से हुई है। विफाकी दारुल हुकूमत में पानी की सतह कम करने के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने के बाद शहरियों की तादाद ने कोरिंग नाले का रुख कर लिया। जहां मछलियों के गैर कानूनी शिकार के साथ साथ सड़क किनारे खड़े शहरी किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ कामरान चौधरी मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बाद जो है वो रावल डैम की पानी की जो सतह है वो बराबर हो चुकी है। 18 फीट तक पानी जो है वो रावल डैम में जमा होता है। 18 फीट के बाद जो है वो पानी का बहाव अगर ज्यादा हो, मुख्तलिफ सेक्टर से आने वाला पानी जो है, मुख्तलिफ नालों से आने वाला पानी जो है वो रावल डैम में फेंका जाता है जिला इंतजामिया की जानब से। जो रास्ते बनाए गए हैं पानी के बहाव के, तो उसके बाद जो पानी जमा होता है उसके खराज के लिए जो है वो स्पिलवेज लगाए गए हैं। तो स्पिलवेज खोले जाते हैं, जिसके बाद जो है वो पानी रावल डैम से जो है उसका खराज किया जाता है। आज सुबह से जो है वो रावल डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं और उसके बाद से जो है वो यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर सड़क पे मौजूद है। इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर मछलियों का शिकार भी किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानब से जो है वो रावल डैम में और रावल डैम से के स्पिलवेज से जो पानी का खराज होता है उससे जो मछलियां निकलती हैं उनका शिकार जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया गया है। पुलिस एहलकार यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो मौजूद हैं, वो लोगों को रोक भी रहे हैं। ताम उसके बावजूद शहरी जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये मेरे रकम में आपको दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन कि रावल डैम के स्पिलवेज जो हैं अभी भी खुले हुए हैं और वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो उस पानी में मौजूद हैं और वो मछलियों का शिकार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाहर जो मेन पार्क रोड है तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो कसीर तादाद में मौजूद हैं। किसी भी बड़े हादसे से जो है वो हादसे का शिकार हो सकते हैं ये लोग, और शहरी जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आपको नजर आएंगे। ये पार्क रोड की मेन सड़क है, उसके पुल के ऊपर जो है वो ये गाड़ियां खड़ी करके और पुल के किनारे पर आकर रावल डैम के स्पिलवेज को जो है वो देख रहे हैं। पुलिस एहलकारों की जानब से जो है वो इनको मना भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ गैर कानूनी शिकार जो है वो मछलियों का वो भी जारी है और सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से जो है वो उनको भी रोका जा रहा है। जब हमारी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से यहाँ पर बात हुई है तो उनका यही कहना है कि
इन शहरियों को जो है वो सुबह से मना भी किया जा रहा है और साथ सख्ती भी की जा रही है। ताहम जो है वो शहरी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है कोई बात, के साथ साथ मछलियों का शिकार भी कर रहे हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। सरगोदा में भी बारिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया, जबकि ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी मलिक आबिद। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के लिहाज से पिछले कुछ अरसा से शदीद हबस और गर्मी में काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा था, लेकिन रात को जो है अब्र रहमत जो है बरसी है, जो पूरी रात जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अगर बात की जाए तो इस वक्त मौसम जो है काफ़ी खुशगवार नज़र आता है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर चरिंद और परिंद भी बड़े खासे जो हैं वो खुश दिखाई देते हैं। इसकी हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुज़श्ता रात से होने वाली बात जो बारिश हो रही है उसके हवाले से अब भी आसमान पर जो है काले बादल छाए हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से भी ये यहाँ पर जारी किया गया है कि खसूसी तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि ख़ास तौर पर क्योंकि बारिशें ज़्यादा बताई गई हैं तो उसी हवाले से पूरे अमला को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। लेकिन गुज़श्ता रात की बारिश जो है उससे अगर बात की जाए तो जहां मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है और चरिंद परिंद खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उसके हवाले से रात की जो बारिश है उसने गली मोहल्लों को जो है वहां पर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ बारिश की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मलिक आबिद हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम लोग जारी रखेंगे। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे रैंकिंग थी 136 और वो हो गया 108 और अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह दोबारा आने वाली है तो बहुत उम्मीद है कि फिर 108 से और इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए ई कॉमर्स पॉलिसी, इसलिए डिजिटलाइजेशन ई कॉमर्स के ऊपर तो जो नहीं था तो वो जिम्मेवारी कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दी है और इंशाअल्लाह इनको आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ है जो जिसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया वो ये है कि असेंबली में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक कानून बनाया गया है, जो पास हो चुका है। यहाँ लगता है कि ये क्या चीज है, इसमें क्या अहमियत है? अहमियत ये है कि जब ये लॉ पास हो गया है तो दुनिया में लोग हमारे प्रोडक्ट्स को जो हमारे कलेक्शन में है, स्वाति चप्पल, पिशावरी चप्पल, हाड़ा के टायर, मुल्तानी टायर, वो कोई दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हमारे पास हक है कि वो हमारा है और हम लोग उनको खत लिख सकते हैं कि ये आप नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मैं समझता हूँ इससे हमें अभी मौका मिलेगा कि जो हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। आपको पता है कि चाइना के साथ FTA हो गया है, बस कितनी ये है कि ये लागू हुआ 1 जनवरी से इस साल और कोविड आ गया है। वो भी जब इंशाल्लाह कोविड खत्म होगा तो हमारा जो FTA चाइना के साथ वो भरपूर होगा। इसके साथ साथ 2 और चीज़ है कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से प्रेजेंटेशन दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स को हम लोग किस तरह से ले जाना है, कहाँ ले जाना है, और उसके जरिए एक ही थी कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। हमारा जो नुकसान है ना हमारे लिए वो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत नैरो है, 5-6 प्रोडक्ट लाइन है, तो हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करना है। और हमारे एक्सपोर्ट ऑफ मीट, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपने अखबार में देख लिया कि हमारा मैंगो का एक्सपोर्ट है ना वो रिकॉर्ड है। हम लोगों ने सोचते थे कि 80,000 टन एक्सपोर्ट होंगे, लेकिन 125,000 हो चुका है। तो ये अच्छी बात है। तो ये हमारी पॉलिसीज है। इंशाअल्लाह मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि ये है ना जो अभी चल पड़ा है, इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिकॉर्ड बेहतर होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया रज़ा दाऊद साहब। मेरा ख्याल है आप एक बात बताना वो शायद भूल गए कि जो जुलाई के महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। जुलाई में ये बिल्कुल सही है। जुलाई में हमारे एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छे थे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह से चलता रहेगा कि जुलाई कोविड के बाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जुड़वा शहरों में बारिश के बायस रावलपिंडी के नालालई में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश के बाइस जो है वो नाला लई में 4 फुट तक पानी जो है वो देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें वासा हुकाम के अमले की, तो वासा हुकाम के ज़िम्मेदार अफसरान MD वासा समेत जो है वो दीगर जो वासा का अमला है वो रावलपिंडी ग्वाल मंडी के जो नाला लई के मुकाम पर नहीं पहुँच सका। सिर्फ 2 जो शक्कर मशीनें हैं और तकरीबन चंद जो एहलकार हैं वो इस टाइम ग्वाल मंडी नाला लई के मुकाम पर मौजूद हैं। अब पानी जो है वो तुगयानी का खदशा था। जो छोटे नाले हैं रावलपिंडी के, वहाँ पर जो है लोगों के घरों में रात जो है पानी भी दाखिल हुआ, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है, काफ़ी बारिश थी। आज जो है मौसम भी खुशगवार है और लेकिन बारिश का सिलसिला जो है रावलपिंडी में अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। लेकिन जो अगर बात करें वासा अफसरान के अमले की, तो वासा हुकाम की जानिब से नाला लई की इस मरतबा सफाई भी लेट की गई, लेकिन वो सफाई जो की गई उसके आस पास जो मलबा है वो इमारती मलबा यहाँ पर रात के अंधेरे में फेंका जाता है। वासा हुकाम जो उस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रावलपिंडी में जो एक शहरी हमारे से मौजूद हैं जो नाला लई के आस पास इनका मकान है, इनसे पूछते हैं जी जब बारिशें होती हैं आपको किस चीज़ का खतरा होता है, आप तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सबसे बड़ी बात तो पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज से 2 महीने पहले ये आए थे शेख रशीद साहब, उन्होंने बड़े नारे दिए कि साहब ये सड़क बनेगी, ये बनेगी। सफाई इन्होंने ज़रूर की है, लेकिन वो सफाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आपको पता है सन 2004 में जो सैलाब आया था उससे ज़्यादा खतरा अभी भी मौजूद है, क्योंकि गहराई तो वही है। सफाई उन्होंने साइटों की है, लेकिन वो देखें वो नाला नज़र आ रहा है, वो अभी भी पाइप पड़ा हुआ है वहाँ पर, वो भी नीचे चला जाता है। बहरहाल माकूल इंतजाम कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरियों का भी यही कहना है कि इंतज़ाम यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसी बातें ही की जाती हैं। अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज़ की, तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो तूफ़ानी बारिश से जो रावलपिंडी के जामा मस्जिद रोड, इकबाल रोड, काली रोड पर पानी खड़ा हो गया था। वासा का अमला जो है सिर्फ दावों तक ही महदूद है, लेकिन रावलपिंडी में बारिशों का अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जो निकासी आपके मनाजिर आप देख सकते हैं। शहरियों की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल राजा, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम को हाई वोल्टेज का झटका लगवाने का फैसला, वापडा ने पनबिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरखास्त जमा करवा दी है। अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका लगाने की वापडा की दरख्वास्त 220 अरब रुपए वसूली की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त का ये मतन है, वापडा ने पन बिजली की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त रवां माली साल 2020-21 के लिए दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक पावर प्लांट्स की मुरम्मत, सकूक बॉन्ड्स रिटर्न, इन्वेस्टमेंट की मद में वसूली की दरख्वास्त है और 43 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में वसूली की दरख्वास्त दायर की गई है। अवाम को हाई वोल्टेज का झटका लगाने का फैसला, वापडा ने पन बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त जमा करवा दी है। आपको बताएं कि आवाम को हाई वोल्टेज का झटका लगाने का फैसला, वापडा ने पन बिजली की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। 220 अरब रुपए वसूली की इजाजत दी जाए, ऐसा कहा गया है दरख्वास्त के मतन में। पेशावर में मौसम तब्दील हुआ तो शहरियों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए ख्वाबों का रुख कर लिया। शहरी चटपटा खाकर महजूज हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अवैस महमूद। अवैस महमूद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो एक 4-5 दिनों बाद जो पेशावर का मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है। बादल जो है वो छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, जिससे
جو گرمی کی شدت ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. کچھ دن قبل گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا. جو شہری تھے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے, لیکن موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. شہری جو ہے ان کے چہرے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں, جبکہ شہریوں نے موسم خوشگوار ہونے کی صورت میں مختلف ڈھابوں کا جو ہے وہ رخ کر دیا گیا ہے. میں اس وقت ایک ہوٹل کے باہر موجود ہوں. اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے, سجی ہے پشاور کی مشہور جو سجی ہے, تکے ہیں, کباب جو ہے پشاور کے مشہور چپلی کباب جو ہے وہ بھی یہاں پہ شہری جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں, اور موسم بھی جو ہے وہ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں, صرف پشاور سے نہیں بلکہ دور دور دراز سے علاقوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ موسم انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ اسی طرح ایک طویل عرصہ جو تھا وہ لاک ڈاؤن میں گزر گیا تھا, جس کی وجہ سے سارے جو ہوٹل وغیرہ تھے اس پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی. صرف ہوم ڈیلیوری کی اجازت تھی, لیکن کھانے پینے کی جو بیٹھنے کی جو جگہ تھی وہ بند کر دی گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے. جبکہ ابھی لاک ڈاؤن بھی ہٹ چکا ہے, موسم بھی خوشگوار ہے, تو شہریوں نے جو ہے وہ مختلف ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے اور انجوائمنٹ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ایک خوش مزاج جو ماحول ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے, جبکہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ کافی عرصے بعد جو گیدرنگ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہوا ہے تو مل بیٹھ کے جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور جو گپ شپ ہے وہ بھی لگا رہے ہیں. بہت شکریہ اویس محمود. سپریم کورٹ نے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دے دی. عدالت نے سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت اور ریلوے سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کراچی حیدرآباد برج کسی بھی وقت گر سکتا ہے. کوچی میں انگریز کا بنایا ہوا پل آج بھی درست حالت میں ہے. دریائے سندھ ملک کی اکانومی چلاتا ہے, اس کو عزت دیں. سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کراچی حیدرآباد برج کسی بھی وقت گر سکتا ہے. کوٹی میں انگریز کا بنایا ہوا پل آج بھی درست حالت میں ہے. دریائے سندھ پر کوئی ایسا پل نہیں جس پر قوم فخر کر سکے. ایوب خان کے دور میں بننے والا ایوب برج واحد خوبصورت پل ہے. ML1 کے لیے اچھے برج بنائے جائیں. دریائے سندھ ملک کی اکانومی چلاتا ہے, اس کو عزت دیں. سیکریٹری ریلوے نے جواب دیا کہ ML1 کا پیکج 1 3 سال میں مکمل ہوگا. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ 3 سال بہت زیادہ ہیں. چائنا والے تو مہینوں میں ریلوے لائن بچھا دیتے ہیں. فنڈز موجود ہیں تو منصوبہ مکمل ہونے میں وقت نہیں لگنا چاہیے. 1800 کلومیٹر کا ٹریک بچھانا چائنا کے لیے کوئی مشکل نہیں. عدالت نے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دے دی. عدالت نے مہلت پلاننگ کمیشن کی درخواست پر دی اور سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت اور ریلوے سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. کیس کی سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی. سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. ISPR نے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں DG ISPR نے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، آج کا دن فرض کی ادائیگی کے لیے عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے مادر وطن کی خاطر پاک فضائیہ کی عظیم روایات جاری رکھیں. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا. چیئرمین مفتی منیب الرحمان چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے. ماہ محرم الحرام 1442 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کے دفتر کراچی میں ہوگا. رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے. زونل کمیٹیز کے اجلاس لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں ہوں گے، جبکہ علماء کی تکنیکی مدد کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. اجلاس میں محرم الحرام کے چاند کی رویت کا فیصلہ کیا جائے گا. چاند نظر آنے کی صورت میں یکم محرم الحرام 21 اگست بروز جمعہ اور یوم عاشور 30 اگست کو ہوگا. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری ٹاکرا کل سے شروع ہوگا. پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں ساؤتھ ہیمپٹن کے میدان میں مد مقابل ہوں گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے کوچنگ پینل کا اعلان کر دیا ہے. کوچنگ پینل کی سربراہی سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کے سپرد کی گئی، جبکہ
ان کے ہمراہ کئی نامور کرکٹرز بھی شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق محمد یوسف کی سربراہی میں پی سی بی کوچنگ پینل کا اعلان کر دیا گیا۔ سابق کرکٹر عبدالرزاق ڈومیسٹک سیزن میں ایسوسی ایشن کی کوچنگ کریں گے۔ اسی طرح عتیق الزمان محمد زاہد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ بالنگ کوچ کی ذمہ داری محمد زاہد اور فیلڈنگ سمیت وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری عتیق الزمان کو سونپی گئی۔ کرکٹ بورڈ کے مطابق اعزاز چیمہ باسط علی بھی ڈومیسٹک سیزن میں ایسوسی ایشنز کی کوچنگ کریں گے۔ ان کے ساتھ فیصل اقبال، غلام علی، ہمایوں فرحت، عرفان فاضل، ظفر اقبال بھی کوچنگ کریں گے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ورزش اور تن سازی کا کلچر دیگر کھیلوں کی طرح دن بہ دن فروغ پا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں تن سازی کا عمل جسمانی فٹنس کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ سیر آبادی پر مشتمل وادی کوئٹہ میں یوں تو دیگر کھیل بھی شہریوں میں بہت مقبول ہیں، لیکن صحت اور فٹنس کا شعور بڑھنے سے یہاں تنسازی اور ورزش کا کلچر بھی دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ورزش اور جسمانی خوبصورتی کا شوق صرف پوش اور امیر علاقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب شہر کے نواحی علاقوں میں بھی درجنوں فٹنس سینٹرز کھل چکے ہیں، جہاں صبح اور رات کے وقت نوجوانوں کی بڑی تعداد ورزش میں مصروف نظر آتی ہے۔ ہمارے نوجوان جو باکسنگ کر کے ان میں اکثر کپکپانے کی جو بیماری پڑ جاتی ہے، اسی لیے لوگ جم کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت بھی بڑھتی ہے اور بندہ تندرست بھی رہتا ہے۔ انسان تکتا نہیں ہے جلدی، پھر بوڑھا نہیں ہوتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اس انسان میں بہت سارے بیماریاں جو انسان کو آتی ہے، اگر آپ ورزش کرتے ہو پھر آپ میں یہ بیماریاں نہیں آئیں گی۔ تنسازی کے لیے کلبوں کا رخ کرنے والے شہری کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز ذہنی دباؤ اور جسم پر اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو بھی جوان یہاں پہ آتے ہیں تو آپ یقین جانو، جو بھی بندہ مطلب جتنے بھی ٹینشن میں ہوئے، ہم لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں آپ یقین جانو کہ جو ٹینشن ہے ہم لوگوں کے پیچھے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم لوگ یہاں پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ وزن اٹھا کر مخصوص ورزشوں کے ذریعے جسم کے جوڑ اور پٹھوں کو مضبوط بنانے کے اس عمل میں سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ پہاڑوں پر چہل قدمی کرتی گائے واپسی کا راستہ بھول گئی۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی علاقے میں مشکل میں گھری گائے کو ریسکیو اہلکاروں نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے سینکڑوں فٹ گہری کھائی سے نکال کر بچا لیا۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔